Hi everyone, welcome to the channel and a soul namaste to all of you. Today we are going to talk about, as we are entering the month of September, ninth month है for the ninth year. So आज हम बात करेंगे, we'll draw out cards to see कि हमारा month of September कैसा जाने वाला है, कैसा रहने वाला है. I'll be doing a card reading for this, and for 4 weeks of the month I will pull out one card each describing, and let's see how the energies for the months are going to be. Before I start, so as we know September ka month hai, and the year is also totaling to a 9. The ninth month of the year is the ninth month of the year, and the total of the year is also a 9. So Mars की energies बहुत high हैं in this month, and we need to be really cautious about our temperament क्योंकि eclipse season भी है, so we have to be cautious about that as well. And I will talk about it in another video in detail कि 9/9 की क्या energies होने वाली हैं particularly for the coming month, and what you need to be careful about, in handling those energies क्योंकि दो eclipses भी आने वाले हैं साथ में. So yeah, I've spread my cards. Let's see कि cards क्या कह रहे हैं for the month of September. I will pick out one card, one for each week, representing each week, and one for an overall guidance for the month. So 5 cards in all, one per week, and then an overall guidance card. Okay. I've drawn out my cards now. So the first week for September, that is from 1st to the 7th or 8th, is going to be, यहाँ पर आपको आप इमोशनल फील कर सकते हो बहुत ज़्यादा. यू कैन बी इन अ लॉट ऑफ टर्मोइल. सेम थिंग कि इफ़ यू कैन सी द कार्ड इज़ अ 2 ऑफ सोर्ड्स. कार्ड का अगर मैं इफ़ आई विल सी, तो यहाँ पे एक मून रिप्रेजेंटेशन है. अगेन आई विल रेजोनेट इट टू the moon being in eclipse. Why I'll tell you, because ये थोड़ा सा जो ये energy देता है कार्ड, for me it is a not very vibrant energy. जहाँ पे आप अगर देख रहे हो the lady who's sitting or the man who's sitting, they have their eyes wrapped with a cloth. उनकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है. So you're not being able to clearly see a situation. How am I linking it to a moon eclipse is because the डे जो है वो थोड़ा ढलने वाला है, तो इसलिए उसको हम उस तरीके से ले रहे हैं. सो इमोशनल टर्मोइल बहुत हो सकता है इन द फर्स्ट वीक, एंड आपको बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग लग सकता है. अगर कोई डिसीजन लेना है तो प्लीज़ उसको डिले कर दीजिए. अगेन रेजोनेटिंग टू द एनर्जीज ऑफ द सोलर मून एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, तो उसको डिले कीजिए. द फर्स्ट वीक इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल आई वुड से कि जहाँ पे आपको क्लियरली कुछ भी फॉर्म आउट होता हुआ नहीं लगेगा. आपको ऐसा लगेगा कि you are in a sort of a dilemma situation. So the first week is going to be like that. Moving on, the next week, it is a wheel of a fortune. तो आपको ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत सारी फील हो सकती हैं. अगेन मूविंग ऑन कि हम 8 टू द नेक्स्ट वीक 15th तक का वीक अगर देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत सारी फील होंगी. यू विल फील एज इफ अगेन रेजोनेटिंग टू सेप्टेम्बर एनर्जीज, बिकॉज 9 जो होता है वो बिगनिंग्स, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स का साइकिल of a cycle. It talks about that energy because end होता है कुछ ना कुछ, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तभी वो एंडिंग आएगी. एंड ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट कि यहाँ पे मिड वीक आपको कुछ ना कुछ कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है. सो दैट इज़
what the midweek is talking about. And also for students who are appearing for their exams, you know, if you'll put in your hard work, आपको उसका result अच्छा मिलेगा. Moving on to the third week of September, again the energies talks about incompletion. आपका कोई काम छूट जाएगा बीच में, आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको betray कर दिया, you know, particularly in partnership situations. I would like to bring it to the core कि अगर आपका कोई भी important decision है, please do not take any important decisions in the first and the third week. You know, मेजरली सितंबर में अगर वो किसी भी तरीके से पुट ऑफ हो सकता है तो प्लीज़ ट्राई एंड डू दैट, बिकॉज यू नो एवरीबडी इज गोइंग टू सी वन और अनदर काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस. एंड यहाँ पे ना एक ओवरऑल एनर्जी जो आ रही है कार्ड्स की, दैट इज़ टू जस्ट वेट एंड सी. कोई मंथ्स होते हैं, कोई दिन होते हैं जब वी आर नॉट सपोज टू टेक एनी एक्शंस. न्यू बिगनिंग्स तो करनी ही नहीं है. एंड एज इट इज़ you know, Hindu calendar according, it is going to be पितृ पक्ष. तो पितृ पक्ष में हम वैसे भी अवॉइड करते हैं generally doing new work. So that is what the energy of the card resonates to right now. तो प्लीज़ अवॉइड डूइंग एनी वर्क. यहाँ पे आपको बिट्रेयल फील हो सकता है. यू नो, पीपल कैन लीव यू मिडवे. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, काम कर रहे हैं, यू आर द बॉस देयर, यू आर द लीडर, यू आर मैनेजिंग पीपल अंडर यू, तो एकदम से पीपल कैन रिज़ाइन एंड लीव यू मिडवे. अगर कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी. इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो बिट्रेयल हो सकते हैं. एंड पर्टिकुलरली फॉर रिलेशनशिप्स इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, प्लीज स्टे वेरी वेरी कॉशियस एंड यू नो try and avoid aggression situations, try and avoid confrontation situations, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा यू नो एंगर कैन गो आउट ऑफ हैंड अगेन बिकॉज ऑफ 9 की एनर्जीज हैं. इफ़ यूल सी ओवरऑल इट्स अ 9 का मंथ, तो दैट्स वाई. सो येस, दैट्स द सिचुएशन बिल्डिंग अप फॉर द थर्ड वीक. एंड देन फॉर द फोर्थ वीक ऑफ सेप्टेम्बर, इट इज़ गोइंग टू बी बेटर देन द 3 weeks preceding, जहाँ पे यू नो यू विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स समथिंग न्यू. जैसे मैंने बोला कि कुछ एंड होता है तो कुछ बिगिन होता है. सो यू विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स समथिंग न्यू, बट देन यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. आपको वहाँ पे बहुत फेथ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा. यू विल नॉट बी एबल टू सी a certain outcome for a certain situation that you're wanting, लेकिन आपको you know you will have to go by your gut instinct. If you feel like that you know you can take that leap of faith, तो आप मूव करो. अगर आपको लगता है कि अभी आपके अंदर वो नहीं आ रहा है, तो लीव इट, सरेंडर इट टू गॉड एंड देन लीव इट. स्टे इन द सिचुएशन एज यू आर, बट यू नो डू नॉट मेक एनी important, do not take any important actions as such in the month of September. And also in the last week of September, particularly for relationships, अगर आप किसी भी तरीके के you know draining time से निकल रहे हो, straining time से निकल रहे हो in your relationships, a loyal friend can be helpful to you. You know, talking to them and like opening up your heart up to them would help you. अपने आपको सॉर्ट करने में, आपके ओवरऑल इमोशनल आपके इमोशंस को सेटल करने में बहुत हेल्प करेगा. सो दैट इज़ हाउ द 4 weeks आर गोइंग टू बी. एंड नाउ कमिंग अप टू द ओवरऑल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. इफ़ यू कैन सी, यू नो, दिस इज़ अ डेथ कार्ड. बिल्कुल टोटल एनर्जीज जो हैं, they are simply talking about do not start any work as of now. बहुत transformative time होने वाला है. We need to be very patient, not aggressive किसी भी relationship में, be it in any situation जहाँ पे आपको triggers आएंगे, but you have to get past those triggers. And you know बहुत लोगों के लिए it is going to be a massive shift from कि यू नो अभी तक आप जिस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को या यू नो ऑन योर करियर एंड हेल्थ फ्रंट ऑल्सो आप जैसे चल रहे थे, देयर इज गोइंग टू बी अ ड्रास्टिक शिफ्ट इन दैट. आपका आउटलुक चेंज हो जाएगा बहुत सब चीज़ों को लेके. एंड न्यू बिगनिंग इज देयर.
डेथ का कार्ड जब आता है तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस इंडिकेट करता है इन टैरो, एंड इट डज नॉट पर्टेन टू physical death per se, but yes, death of your personality, of how you how what's your perspective towards certain situations, आप किस तरीके से लेते हैं चीज़ों को लाइफ में, दैट पर्सपेक्टिव कैन चेंज। उन कुछ चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बदल जाता है when there's a death card. So the guidance is that आपको बहुत ही cautiously tread करना है, and please avoid confrontations at all costs. And also, in addition to this, I would like to say one more thing, that आप इस मंथ में particularly because मार्च का मंथ है, तो प्लीज स्ट्रेस ऑन chanting Hanuman Chalisa. That would be helpful to one and all. So that'll be for the day. Please like, share and subscribe the video, and let us know what else would you like us to make videos on. Thank you so much.